My lovely students, welcome to Mythological and a very warm welcome to New Year 2025. Start करते हैं session. And if you've not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. So the first question of this session and this year, the question is 4 people A, B, C and D are playing a game. Each of them starts with a different number of points. At the end of each round, one winner is declared and each of the other 3 players gives exactly half of the points to the winner, half of their points to the winner. After 3 rounds, the scores of A, B and C, D respectively are 42, 12, 4 and 24. So the question is, how many points did B have at the start of the game? Pause the video, take your time, try to solve it. Easy question hai, once you've understood the pattern. So each of them starts with a different number of points and at the end of each round, one winner is declared. Okay, so for A, B, C and D, points at the end are 42, 12, 4 and 24. And the condition is that each of the other 3 players gives exactly half his points to the winner. So for example, एक random example लेते हैं कि for A, B, C, D, let us say their points are initially 20, 20. ठीक है? And let us say कि A won the round has been won by A. So if A wins the round, the other 3 players यानी B, C and D will be giving exactly half their points to the winner. So for B, C and D, their half points will be deducted and all these points will be given to A only. So after the round, number of points with A will be 50 and for others will be 10, 10 and 10. So basically, since every losing player will be giving half their points to the winning player, so at the end of the round, highest number of points किसके हो जाएंगे? Winner के. Winner will have highest number of points because सबके half of points ले लिए उसने. Isn't it so? तो क्या clearly हमें दिख रहा है कि at the end of the third round, if A has 42 points, which is maximum of the points of the given players, so definitely A must have won the third round. So A won round 3. And if A has won round 3, यानी कि every other player B, C and D has exactly half the points as they would have had before the start of the round. Isn't it so? तो उनके half of points उनको वापस दे देते हैं. So plus 12 for B, plus 4 for C, plus 24 for D. और ये सारे के सारे points कहाँ से डिडक्ट होंगे? A से डिडक्ट होंगे. So 36 plus 4 40, तो माइनस कर दोगे 40 from A. So points of A before start of round 3. So at the start of round 3, or we can say end of round 2. So points of A will be 2, for B will be 24, for C will be 8 and for D this will be 48. Now we'll repeat the same story, but this time at the end of round 2, number of points किसके maximum है? For D. So D must have won round 2. Same story करते हैं. Half of points सारे के सारे A, B और C को दे देते हैं because A, B and C were the losers in this round. So plus 2, plus 24, plus 8, total 34 ऐड किया हमने. 34 सब्ट्रैक्ट करोगे D में से. So number of points respectively will be 4, 48, 16 and 14. Okay. Now maximum number of points अब किसके हैं? B के हैं. So B must have won round 1 because this is the situation at start of round 2 or end of round 1. So B must have won this round. B won round 1. So at the start of round 1, points क्या रहे होंगे? बाकी सबको points double कर दो. 4 plus 4, 16 plus 16, 14 plus 14 और ये सारे points डिडक्ट करोगे B में से. So minus 34 हो जाएगा. Okay. So at the start, points of A will be 8, that of B will be 14, C will be 32 and 28 for D. Question was, how many points did B have at the start of the game? So the answer will be 14 to start with. Option A will be the answer. Is that clear? ठीक है.
Option A will be the answer. Next question. In a class of 120, along with mathematics as a common subject, students can opt vocational subjects such as retail, automobile, security, or a combination of any two. Retail, automobile, security, these three are vocational subjects, but they can also opt a combination of any two. 10 students chose both retail and automobile, 25 chose both automobile and security, and none opted for retail and security both. In a mathematics test, the average marks scored by students who opted for retail is 72, and that of students opting for security is 88. However, the combined average marks in mathematics of students of these two subjects is 78. If maximum possible number of students opting for only automobile is m and minimum possible number of students opting for only retail is n, then find the difference of m and n. m और n का difference find out करना है. So Venn diagram form करते हैं. 3 vocational subjects are there. And subjects are retail, automobile, and security. And total number is 120. Okay. So 10 students chose both retail and automobile. 10 chose both retail and automobile. We also know that students can opt retail, automobile, security, or a combination of any two. So this also implies that all three vocational subjects cannot be opted for. So the students selecting all three will be 0. Okay. Now 10 students chose both retail and automobile. 25 chose both automobile and this is security. तो S से represent करते हैं इसको. So both automobile and security, that value is 25. And both retail and security, that value is 0. So these values are known. Additionally, we know कि mathematics test में average marks scored by students who opted for retail, that is 72. And that who opted for security, their average is 88. So retail वाला बच्चा पार्टी का average था 72 और security वालों का average was 88. But overall average of these two, the combined average marks in mathematics of students of these two, सबका नहीं, only those who were students of these two. ठीक है. So या तो retail के या फिर security के और for both तो 0 है. So that total average is 78. Alligation apply करके ratio मिल गया हमको. 78 minus 72 is 6. 88 minus 78 is 10. So ratio is 10:6, which is 5:3. So ratio of number of students of retail and security, that is 5:3. Okay. Which implies कि number of students who opted for retail, that is 5x, a multiple of 5. And number of students who opted for security, that value is 3x. Okay. And we need to find out maximum possible number of students who opted for only automobile. So we have to maximize this value. This value has to be maximized. And that value, let us say, is m. Minimum possible number of students opting for only retail. So this value here, only retail value has to be minimized. ठीक है. This value has to be minimized. But we know कि ratio retail और security वालों का ratio क्या है? 5x, 3x, 5:3 का multiple है. ठीक है. So क्या कर सकते हैं? If you have to minimize this value, so basically क्या है? Ultimately, क्योंकि this value is fixed, 10 है retail automobile का, तो अगर मैं इसको minimize करना है, यानी कि 5x को minimize करेंगे ultimately, because 10 तो fixed है, और अगर 5x minimize हो रहा है, यानी कि x minimize हो रहा है, as such, x should be as minimum as possible. तो अगर 5x minimum होगा, 3x भी तो minimum होगा, 3x भी minimum होगा, so we have to minimize this as well. एक तरह से क्या appreciate कर पा रहे हो? ठीक है. Because 5x की वैल्यू क्या होगा? Let us say this value is a, तो 5x will be equal to a plus 10. So अगर a को मिनिमम करना है तो 10 तो फिक्स्ड है, तो 5x भी मिनिमम होगा, और अगर 5x मिनिमम है यानी कि x मिनिमम होगा, बिकॉज 5 तो कांस्टेंट है, यानी कि 3x को भी मिनिमम करोगे. ओके. और 3x हमारा क्या है? 25 प्लस, लेट अस से इफ दिस इज b, तो 3x इज इक्वल टू 25 प्लस b. ओके. सो 25 प्लस b, दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. देखो अगर ये कंडीशन नहीं होता तो हम 5x इक्वल टू a प्लस 10 था, a को 0 कर देते, बट जैसे ही तुम a को 0 कर दोगे 5x इक्वल टू 10 आ जाएगा. सो 3x विल बी इक्वल टू 6, बट प्रॉब्लम ये है 3x इज इक्वल टू 25 प्लस b, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25. एंड सिंस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो 5x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 इंटू 5/3.
क्या है, क्लियर है? ओके, सो बी का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, जिससे कि हमारा 3x, 3 का मल्टीपल आ जाए 3x, तो बी मस्ट बी इक्वल टू 2, बी का मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, तभी 3x विल बी 27, बिकॉज 3x को 3 का मल्टीपल तो होना पड़ेगा, तो 3x इक्वल टू 27 आ गया, एट बी इज इक्वल टू 2, एंड हेंस x इक्वल टू 9 आ गया, तो 5x इक्वल टू आ गया 45। क्या है, क्लियर है? और या फिर ये कह सकते थे हम कि 3x इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, so x is greater than equal to 25 by 3, so 5x will be greater than or equal to, बट होना भी तो इंटीजर पड़ेगा ना, x ऐसा 5x will be greater than equal to 25 by 3 into 5, यानी कि 125 by 3, ठीक है? क्या है, क्लियर है? ओके, बट अगर यहां से वैल्यू निकालोगे तो प्रॉब्लम ये आ सकता है कि 5x हमारा फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 125 by 3 विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 42 के आसपास है, बट 5x 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है? 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, सो दैट वे दिस हैज टू बी इक्वल टू 45, यानी कि a हमारा इक्वल टू 35 आ जाएगा। ठीक है, बट इतनी कहानी करने से बेस्ट क्या था कि हमें पता है 3x मिनिमम करना है हमें, 25 वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, b को 2 ले लेते, 25 प्लस 2 इज 27, 27 वैल्यू आ रहा है, 27 इज 3x, x इक्वल टू 9, 5x आ जाएगा 45, सो a मस्ट बी इक्वल टू 35, ठीक है? सो नाउ रिटेल में नंबर कितना हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया, एंड 27 है नंबर हमारा सिक्योरिटी का, 45 प्लस 27 दैट इज 72, सो रिमेनिंग 48 विल बी फॉर ओनली ऑटोमोबाइल, सो ओनली ऑटोमोबाइल का वैल्यू आ गया हमारा 48, जो कि मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना था, ठीक है? सो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओनली ऑटोमोबाइल दैट वाज m, तो m इज इक्वल टू आ गया 48 और n इज इक्वल टू आ गया 35, मिनिमम वैल्यू फॉर रिटेल दैट इज 35, so difference between m and n that came out to be equal to 13, equal to, एक सेकंड, हाँ 13 आएगा, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, ठीक है? ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ दिए हुए हैं, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा एनीवे, ठीक है? क्लियर है भाई? बेसिकली जैसे ही हमें रेशियो मिल गया, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, इतना इक्वेशंस जो हमने किया इतना ऐसा चीज़ का ज़रूरत नहीं था, रिटेल, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, दिस वैल्यू वॉज 10, दिस वॉज 0, दिस वॉज 0, दिस वॉज 25, अल्टीमेटली रेशियो आया था हमारा, दिस इज 3x, दिस इज 5x, and we need to find out maximum possible value of students opting for only automobile, so if we have to maximize this value, so बाकी सबको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है? सो ऑल द अदर वैल्यू शुड बी मिनिमम, और हमें मिनिमम वैल्यू भी चाहिए था, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ओनली रिटेल, सो दिस हैज टू बी मिनिमाइज्ड, दिस शुड आल्सो बी मिनिमाइज्ड, बिकॉज अगर मैक्सिमाइज करना है उस वैल्यू को, ठीक है? अब अगर इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, सो नाउ दिस वैल्यू फॉर सिक्योरिटी, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3x, 3 का मल्टीपल है, 3x है, सो मिनिमम वैल्यू हैज टू बी 2, 0 नहीं हो सकता, मस्ट बी 2, मिनिमम 2 होना पड़ेगा, 27 इक्वल टू 3x आ गया, सो x इक्वल टू 9 आ गया, 5x विल बी 45, so 45 will be 10 plus this value, so this must be 35, ठीक है? अब ये वैल्यू आ गया 5x हमारा 45 आ गया, 45 प्लस 27 दैट इज 72, टोटल 120 है, तो 120 माइनस 72 दैट विल बी वैल्यू फॉर ओनली a which will be equal to 48, and hence difference will be 13, answer will be option E. Okay, clear? Next question. Now next question is, यहाँ तक तो कहानी सेम है कि combined average is 78, average score of students opting for only retail is 80, average score of students opting for only retail is 80, then find maximum possible average score of students opting for both retail and automobile, maximum possible average score of students opting for both retail and automobile.
तो वी नो कि एवरेज स्कोर ऑफ रिटेल इज 72 and average score of students who opted for only retail, that value is 80. That is 80. So only retail is 80. या तो only retail का स्टूडेंट्स हैं या फिर रिटेल एंड ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं. तो only retail का एवरेज है 80 और ओवरऑल एवरेज है 72. लेट अस से एवरेज ऑफ रिटेल एंड ऑटोमोबाइल, दैट एवरेज लेट अस से x. ठीक है, दैट एवरेज लेट अस से x. या ठीक है, x मान लेते हैं. और ओवरऑल एवरेज 72 है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रिटेल एंड ऑटोमोबाइल, दैट वैल्यू इज 10. लेट अस से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ओनली रिटेल, दैट वैल्यू इज n. ओके, तो वेट एवरेज क्या आ रहा है हमारा 80 इंटू n प्लस x इंटू 10, दैट इज डिवाइडेड बाई n प्लस 10, दैट इज 72. इक्वेशन बना लेते हैं. सो 80 इंटू n प्लस x इंटू 10 यानी 10x डिवाइडेड बाई n प्लस 10, दिस इज 72. So 80n plus 10x, this is equal to 72n plus 72 into 10. So 80n minus 72n, this will be 8n. This will be equal to 72 minus x into 10. And our purpose is to maximize the possible average score of students opting for both retail and automobile. यानी कि हमें x को maximize करना है. x should be maximum. ठीक है, so 10 से डिवाइड कर दो तो 8n by 10 यानी 4n by 5. This will be 72 minus x. So finally equation बन जाएगा हमारा x is equal to 72 minus 0.8n. और अगर x को हमें मैक्सिमाइज करना है तो 72 माइनस 8.8n को मैक्सिमाइज करेंगे. बट जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो जितना कम होगा उतना ज्यादा वैल्यू हमारा ओवरऑल 72 माइनस 0.8n तब मैक्सिमाइज होगा, जबकि 0.8n मिनिमाइज हो. यानी कि दिस वैल्यू शुड बी मिनिमाइज्ड मिनिमम एज पॉसिबल. And if that has to be minimum, point at constant है तो n should be minimum. Value of n should be minimum. और n क्या है हमारा only retail वाले number of students, these should be minimum. और ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. n का वैल्यू आया था 35, तो n minimum is equal to 35. पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा x is equal to 72 minus 0.8 into 35. So 72 minus 28, answer will be 44. आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी 44. क्या ये क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, इसको एक बैलेंस की तरह भी समझ सकते हो, बेटर समझ में आएगा. देखो एक बैलेंस है हमारा, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर टेकिंग वेट एवरेज. ठीक है, तो वेट एवरेज में हमारा जो ओवरऑल एवरेज है दैट इज 72 फॉर रिटेल. Some students have opted for only retail. ठीक है, others have opted for retail and automobile. ध्यान से बात को समझना. ठीक है, some have opted for only retail and some have opted for retail and automobile. So only retail वाला students का average score is 80 and we need to find out average score for retail and automobile और उसको हमें maximize करना है. ठीक है, so this average has to be maximized. Also we know कि number of students who have taken retail and automobile, that value is 10. n की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट अल्टीमेटली ऐसे समझो बैलेंस है हमारा. ठीक है, सो इन दिस बैलेंस अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है? वी नीड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एवरेज. ठीक है, वैल्यू ऑफ आवर एवरेज. ठीक है, अब एक साइड में 80 है जो कि फिक्स्ड है, इजंट इट सो? अब हमारा जो वेट है अल्टीमेटली जब हमें बैलेंस रखना है इसको, तो जितना वेट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, जब उतना ही वेट राइट हैंड साइड पे होगा तभी तो वे हमारा वेइंग बैलेंस परफेक्टली इन बैलेंस रहेगा. और बैलेंस में कब रहेगा? डिफरेंस हमारा जो है अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? डेविएशन देखोगे एवरेज से. एवरेज हमारा 72 का है, डेविएशन कितना आ रहा है? डेविएशन आ रहा है 8 का. 80 इज 8 मोर देन 72, तो प्लस 8 है. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? n है, तो प्लस 8n, दिस विल बी डेविएशन. इजंट इट सो? तो जितना डेविएशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है यानी ओनली रिटेल के है, यानी कि प्लस 8n है, सेम डेविएशन होना चाहिए राइट हैंड साइड में, माइनस 8n होगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एवरेज एंड 72. डेफिनेटली 72 से कम वैल्यू होगा तभी तो एवरेज 72 आ रहा है, बिकॉज 80 ऑलरेडी हायर है. बिटवीन 80 एंड ए मैक्स होगा हमारा 72, तो 72 से लेसर वैल्यू होगा ए मैक्स, तो 72 माइनस ए मैक्स.
एक सेकेंड, जब माइनस एम एक्स करेंगे तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा, बट हमने माइनस 8 लिया है डेविएशन, ठीक है, तो एम एक्स माइनस 72 करेंगे तब डेविएशन मिलेगा हमें, ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, सो दैट विल बी इक्वल टू इनटू 10। सो ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्लियर है। अब 8n शुड बी इक्वल 72 माइनस एम एक्स इंटू 10, और यहाँ से फिर अल्टीमेटली सॉल्व करके तुम एम एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, क्या है, क्लियर है। बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ से समझ में आएगा कि अगर हमें 72 माइनस एम एक्स इस वैल्यू को रखना है, कितना मिनिमम रखना है, दिस शुड बी मिनिमम, 10 कांस्टेंट है, एंड इफ दिस हैज टू बी मिनिमम तो n शुड आल्सो बी मिनिमम, बिकॉज 8 तो कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, तो n को मिनिमम करना पड़ेगा, इजंट इट सो, क्लियर है। अकॉर्डिंगली वैल्यू हमारा आ जाएगा, आंसर विल बी 44 व्हेन n इज इक्वल टू 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When opening his fruit shop for the day, a shopkeeper found that his stock of apples could be perfectly arranged in a completely triangular array. That is, every row with one apple more than the row immediately above, going all the way up, ending with a single apple at the top. During any sales transaction, apples are always picked from the uppermost row and going below only when that row is exhausted. When one customer walked in at the middle of the day, she found an incomplete array in display having 216 apples totally. How many rows of apples, complete and incomplete, were seen by this customer? And we have to assume that the initial stock did not exceed 250 apples. Okay. So situation क्या था? There was a triangular array. यानी कि टॉप पे every row with one apple more than the row immediately above, going all the way up, ending with a single apple at the top. तो टॉप पे भी had a single apple. ठीक है, एक सिंगल एप्पल था। फिर नीचे हमारे पास 2 एप्पल्स, then there will be 3 apples followed by 4 apples, then 5 apples and so on, ठीक है। तो बेसिकली nth रो पे क्या होगा, n एप्पल्स होंगे, n एप्पल्स होंगे, isn't it? And if total n rows are there, तो number of apples कितने हो जाएंगे, total number of row apples will be n into n plus 1 by 2, because फर्स्ट रो में 1 है, फर्स्ट रो में 1 एप्पल है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, एंड सो ऑन। तो 1 से लेकर n तक का सम होता है n into n plus 1 by 2, तो नंबर ऑफ एप्पल्स विल बी n into n plus 1 by 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इज व्हाट द ट्रायंगुलर एरे इज in this question. And then question is saying, assume that the initial stock did not exceed 250 apples, यानी कि total apples जो थे initially 216 हमारा n to n plus 1 by 2 नहीं होगा, बिकॉज ये तो कुछ एप्पल्स हमने टॉप से निकाल लिया, उसके बाद की कंडीशन है टोटल एप्पल्स जो इनिशियली थे दैट वर नॉट मोर देन, डिड नॉट एक्सीड 250 एप्पल्स, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 250, सो n into n plus 1, this is less than equal to 250 into 2, 500. Okay, less than equal to 500. Okay, so क्या वैल्यूज n की पुट कर सकते हैं? इफ यू पुट n इज इक्वल टू 20, तो 20 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 इंटू 21, 420 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। n इज इक्वल टू 21, वैल्यू आ जा रहा है हमारा 21 इंटू 22, so that is 462, n is equal to 22, 22 into 23, so this is 50, 220, एक सेकेंड, 440 प्लस 66, 506 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 500। तो ये कैसे हो सकते हैं हमारे, बट n इज इक्वल 20 पे हमारा टोटल एप्पल्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, n into n plus 1 by 2, that value will be 210, 210। और क्वेश्चन ये बता रहा है हमें कि 260 एप्पल्स देखे थे कस्टमर ने आफ्टर सम एप्पल्स फॉर ऑलरेडी सोल्ड, ठीक है, एट द मिडिल ऑफ द डे, तो 210 हमारा वैल्यू आ रहा है टोटल, विच इज लेस देन 216, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है दैट इज ग्रेटर देन 216, लेस देन 250, सो n इज इक्वल 20 नहीं होगा, डेफिनेटली देयर इज ओनली वन वैल्यू पॉसिबल, दैट इज n इज इक्वल 21, ठीक है, n इज इक्वल 21 वाला ही केस रहा होगा, क्या ये क्लियर है? और इफ n इज इक्वल 21 वाला ही केस रहा था तो टोटल एप्पल्स इनिशियली कितने होंगे,
दैट इज 21 इंटू 22 बाई 2, यानी कि 21 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 231 एप्पल्स. 231 एप्पल्स थे. एंड आफ्टर सम टाइम सम एप्पल्स वर सोल्ड ड्यू टू विच रिमेनिंग एप्पल्स थे 216. 216 एप्पल्स रिमेनिंग बचे थे, यानी कि -15 एप्पल्स विच वर सोल्ड. सो रिमेनिंग एप्पल्स बचेंगे 216. Okay. So how many rows of apples were seen by the customer? Or during any transaction, during any sales transaction, apples are always picked from the uppermost row. ठीक है. So topmost row पे कितने apples होंगे? 1, then 2, then 3, then 4 and then 5. ठीक है. सबसे पहले 1 एप्पल पिक होगा टॉप का, then 2 एप्पल्स. टोटल हमें कितने पिक करना है? 15 एप्पल्स को पिक करना है. कितनी रोज एग्जॉस्ट हो जाएंगी? फर्स्ट रो खत्म हो गई 1 एप्पल पिक करते ही, ठीक है. प्लस अब 2 एप्पल्स पिक करते ही सेकंड रो भी खत्म हो गई. 3 एप्पल्स पिक करते ही थर्ड रो खत्म हो गई. फिर 4th एप्पल्स पिक करो, 4 एप्पल्स पिक करो, फर्दर 4th रो भी खत्म हो जाएगी. रो 5th में 5 एप्पल्स हैं, 5 और पिक कर लोगे तो 5th रो भी खत्म हो जाएगी. टोटल एप्पल्स कितने पिक कर लिया हमने? 15. तो 15 एप्पल्स वर इन 5 रोज, इन 5 रोज. और टोटल रोज हमारी कितनी थी? 21 वर टोटल रोज. तो रिमेनिंग रोज कितनी बचेंगी? 21 minus 5, 16 rows were remaining. Option D will be the answer. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था, लेट अस से अगर 218 एप्पल्स होते तो 13 एप्पल्स ही पिक किए होते, तो फर्स्ट 4 रोज कंप्लीटली पिक हो जाती, 5th रो में 2 एप्पल्स बचे होते. ठीक है. जस्ट इन केस अगर 218 एप्पल्स देखे होते कस्टमर ने, इन दैट केस कितनी रोज होती? 218 देखे होते, यानी कि 13 लेस. सो फर्स्ट रो में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 और 5th वाली से भी 3 एप्पल्स पिक किए, बट 2 एप्पल्स उस केस में रह जाते 5th रो में, तो इनकम्प्लीट होती पर होती तो. ठीक है. यानी कि 4 ही रोज हमारी रिमूव होती. इफेक्टिवली इस केस में नंबर ऑफ रोज कितनी दिखती? नंबर ऑफ रोज दिखती उसको 21 - 4, यानी कि 17 रोज दिखती. भले ही 17 रोज इनकम्प्लीट होती पर दिखती तो. ठीक है. तो अगर 218 वैल्यू होता तो इन दैट केस आंसर वुड हैव बीन 17. क्लियर है? 17 rows, out of which 16 were complete and 17th incomplete. But in the present question, all 16 rows were complete rows. Next question. Clear है? ठीक है. Next question करते हैं. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using 4 distinct digits such that each number contains 2 before 5. Each contains 2 before 5. So every number must contain 2 and 5, तभी तो 2 before 5 आएगा. तो एक चीज तो क्लियर है कि ऑल सच नंबर्स कंटेन 2 and 5. डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, तो 2 and 5 को तो कंटेन ही करता है. 2 और डिजिट्स हमें सेलेक्ट करना है. 2 मोर डिजिट्स हैव टू बी सेलेक्टेड अपार्ट फ्रॉम 2 and 5. ठीक है. अब 2 केसेस बन सकते हैं हमारे. फर्स्ट केस कुड बी दैट नंबर सच नंबर कंटेन्स 0. बिकॉज 0 वाला केस स्पेशल है. अगर 4th प्लेस पे आ गया तो फिर नंबर हमारा 4 डिजिट नहीं बचेगा. दैट इज वाई 0 वाले केस से हम डिस्टिंग करेंगे कि नंबर कंटेन्स 0, तो अलग तरह से कैलकुलेट करेंगे. और सेकंड केस विल बी नंबर्स नॉट कंटेनिंग 0, not containing 0. So if the number contains 0, 4-digit number is there. But we know since that has to be a 4-digit number, तो 0 हमारा फिर इस प्लेस पे तो नहीं आएगा, 4th प्लेस पे तो नहीं आएगा. That is for sure. So 0 must be in one of these places, one of these 3 places. ठीक है. तो सबसे पहले 0 को प्लेस कर देते हैं, सबसे पहले प्लेस कर देते हैं 0 को. सो टू प्लेस 0, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 3. तो 3 में से कोई एक चूज कर लेंगे. 3C1 इज नंबर ऑफ वेज टू प्लेस 0. ठीक है. अब हमने 0 को प्लेस कर दिया, कहीं एक जगह पे आ गया, 0 प्लेस्ड हो गया. नाउ आफ्टर प्लेसिंग 0, नंबर ऑफ डिजिट्स रिमेनिंग आर 3. 2 आर फिक्स्ड पहले से ही, 2 and 5 तो हमेशा ही सेलेक्ट होगा. सो वी विल हैव टू सेलेक्ट 1 मोर डिजिट. एक और डिजिट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी है? 10. 0
1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now 0 has been selected in this case. 2 and 5 have to be selected in all cases. तो बची हुई डिजिट्स कितनी बची हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट वन डिजिट आउट ऑफ 7. भाई 2 और 5 दोनों को करना है तो 2C2 लिख लो और ना लिखो, दोनों एक ही बात है, बिकॉज 2C2 से हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे 2 एंड 5 को. 2C2 इक्वल्स 1 ओनली, क्योंकि ये सारे केसेस में ही सेलेक्ट होगा. ठीक है, अब बची हुई 7 में से हमें सेलेक्ट करना है वन डिजिट को. तो 7C1 से विल बी सेलेक्टिंग वन मोर डिजिट. ठीक है, 0 तो प्लेस हो गया है, 0 इज प्लेस्ड इन 3C1 वेज. अब बची हुई 3 डिजिट्स में से हमें प्लेस करना है वन digit that we have selected and 2 and 5 such that 2 is always before 5, such that 2 is always before 5. ओके, अब देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को, 2 before 5 को कैसे हम मैनेज करेंगे. लेट अस से हमारे पास 3 डिजिट सेलेक्ट हुई हैं 1 2 and 5. कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे इससे? कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 1 2 और 5 से? टोटल 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस बनेंगे बिकॉज ऑल आर डिफरेंट. ठीक है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? 125 152 215 251 512 and 521. Now the condition is that 2 has to be coming before 5. कितने नंबर्स में आ रहा है? 2 before 5, 1 2 and 3. So out of 6 in 3 cases हमारा 2 is coming out to be before 5. और इन जनरल 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 केसेस में, बिकॉज देखो दो ही केसेस होंगे, या तो 2 5 से पहले आएगा या बाद में आएगा. तो हाफ द केसेस में 2 विल बी कमिंग बिफोर 5 एंड बाकी बचे हुए हाफ केसेस में 2 विल बी कमिंग आफ्टर 5. ठीक है, 2 केसेस में बिफोर 5 आएगा और 2 केसेस में आफ्टर 5 आएगा. सॉरी, हाफ केसेस में बिफोर 5 आएगा और हाफ केसेस में आफ्टर 5 आएगा. 3 केसेस में आया बेसिकली. ठीक है, आउट ऑफ 6 3 केसेस में आएगा बिफोर 5 और 3 केसेस में आएगा आफ्टर 5. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, या इसी बात को ऐसे भी सोच सकते थे कि पहले हम 1 को प्लेस कर देते और उसके बाद में देख लेते मामला. तो 1 को प्लेस करने के तरीके कितने हैं? 3 वेज हैं इन टोटल. भाई अगर 3 डिजिट्स है हमारे पास तो 1 को या तो यहाँ प्लेस करोगे या फिर इस प्लेस पे या इस प्लेस पे. और एक बार तुमने 1 को प्लेस कर दिया तो बचे हुए 2 प्लेसेस में तो प्लेस करना है 2 को और 5 को, सच दैट 2 इज कमिंग बिफोर 5. तो ऑप्शन तुम्हारे पास एक ही अवेलेबल है हर एक केस में. तो टोटल नंबर्स होंगे 3. ओके, which is basically 3C1 into 1 only. ठीक है, बट बेटर अप्रोच क्या है? 3 फैक्टोरियल बाई 2. सो इन दिस केस हमने सिलेक्शन तो कर लिया सारा का सारा. अब अरेंज करते हैं वन डिजिट दैट वी सेलेक्टेड एंड 2 and 5. सो नंबर बेस कितने हो जाएंगे हमारे? 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2. तो कितना नंबर आ गया? 2C2 तो 1 है. 3 इंटू 7 इज 21. 21 इंटू 3 दैट इज 63. तो नंबर्स आ गए हमारे टोटल 63 in which 0 is always there. Now calculate those numbers which are not containing 0. So if the number is not containing 0, in such a case, देखो 2C2 तो हमेशा है बिकॉज 2 and 5 को तो सेलेक्ट करना ही करना है. अब बचे हुए डिजिट्स में से 0 को सेलेक्ट नहीं करना है इस बार. तो कितने बच गए डिजिट्स? 9 - 2, क्योंकि 2 हमने पहले ही 2 and 5 को सेलेक्ट किया हुआ है. तो बचे हुए 7 में से सेलेक्ट करना है हमको 2 डिजिट्स को, 7C2. ठीक है, 2 और को सेलेक्ट करिए 7C2 से. नाउ 4 डिजिट्स आर देयर व्हिच हैव टू बी अरेंज्ड. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल. एंड इन हाफ द केसेस वी विल हैव 2 बिफोर 5. तो इन 2 करोगे 1/2. ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 केसेस में 2 विल बी बिफोर 5. कितना नंबर आ गया यहाँ पे? 2C2 इज 1. 7C2 विल बी 7 into 6/2 21 into 4 factorial into 1/2 which is 12. So this number is 252. तो टोटल नंबर्स आ गए हमारे 252 प्लस 63 315. आंसर विल बी 315. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. इज दिस क्लियर? क्या है बात क्लियर? ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गया. एक और अप्रोच ये हो सकता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेथड 2. पहले विदाउट एनी कंडीशन सारे के सारे नंबर्स फाइंड आउट कर लें, हम टोटल केसेस निकाल लें. टोटल केसेस 0 को इंक्लूड करके. ठीक है, सो
2 and 5 को तो सेलेक्ट कर ही लिया हमने 2C2 से. फ्रॉम रिमेनिंग 8 वी हैव टू सेलेक्ट 2 मोर डिजिट्स बिकॉज 4 डिजिट नंबर बनाना है. 8C2 से बचे हुए 2 डिजिट सेलेक्ट हो जाएंगे. नाउ 4 फैक्टोरियल विल बी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, और उनमें से हाफ केसेस में 2 will be 4 5, तो डिवाइड बाय 2. So this will be 2C2 which is 1, 8C2 will be 28, 28 into 12 which is 336 total cases. Now subtract those cases minus numbers with starting with 0. ठीक है, numbers with जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज अगर 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, वो तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा. ठीक है, सो नंबर्स स्टार्टिंग विद 0. तो 0 स्टार्ट में रख दिया, एक ही तरीके से रखा जा सकता है. ठीक है, 0 को तो हमने पुट कर दिया. अब बचे वो जो 7 है उनमें से एक को सेलेक्ट किया होगा हमने. अगर 0 को सेलेक्ट किया है 2 और 5 को सेलेक्ट किया ही होगा. सो बचे हुए 7 में से एक और डिजिट सेलेक्ट किया होगा, 7C1 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2, बिकॉज 0 तो पहले ही फिक्स कर दिया हमने. तो अब बचे हुए 3 को सेलेक्ट करना है, सेट करना है 3 फैक्टोरियल बाई 2 विच विल बी 7 इंटू 23 विच इज इक्वल टू 21. तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 316 336 माइनस 21, दिस इज 315. तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. दोनों तरीके लॉजिक समझ में आना चाहिए. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट A1, A2, A3, A4, AN and so on be the n points on the straight line y is equal to px plus q. So this is a straight line y is equal to px plus q. Coordinates of AK is xk, yk, where k is equal to 1, 2, 3, 4 till n, such that x1, x2, x3, x4, xn these numbers are in arithmetic progression. So x coordinates हमारे सारे के सारे numbers के arithmetic progression में है. ठीक है, और अगर x coordinates arithmetic progression में है तो y coordinates भी फिर arithmetic progression में होंगे, because y is equal to px plus q है. एक लाइन है, ठीक है, px plus q एक लाइन है. तो अगर x कोऑर्डिनेट्स हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो y कोऑर्डिनेट्स भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे. क्या ये बात समझ में आती है? बिकॉज अगर ये बात नहीं क्लियर होती है तो एक एग्जांपल ले लें, लेट अस से कि हम कह दें क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, तो x yn विल बी इक्वल टू pxn प्लस q, बिकॉज xn कॉमा yn कोऑर्डिनेट्स होंगे अनथ पॉइंट के. ठीक है, और अगर x कोऑर्डिनेट्स हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एज सच कैन वी से xn की जगह पुट कर देते हैं yn इज इक्वल टू p इंटू xn होगा x1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d1 if d1 is the common difference for the series of for the AP for x1 x2 xn. ठीक है, प्लस q. सो यहां से वैल्यू हमारा आ जाएगा yn इज इक्वल टू px1 प्लस p इंटू n माइनस 1 d1 प्लस q. सो yn विल बी इक्वल टू px1 प्लस q प्लस n माइनस 1 इंटू p d1. अब px1 प्लस q, x1 तो देखो कांस्टेंट है, x1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होगा. x2 फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके बनेगा, फिर x3 बनेगा एंड सो ऑन. px1 प्लस q दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस विल बी फर्स्ट टर्म विच इज y1 और n माइनस 1 इंटू pd1. pd1 क्या है? दिस विल बी d2, कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज ऑफ y2. तो यहां से क्लियर हो रहा है कि y में जो सीरीज बनेगा दैट विल ऑल्सो बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? तो x में भी पे होगा, y में भी पे होगा. ठीक है, अब हमें गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A2. A2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 85 माइनस 33. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A14 आर 79 कॉम माइनस 15. सो फ्रॉम A2 टू A14 कितना डिफरेंस है? 12 टर्म्स का डिफरेंस है. तो A2 पे कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 और A14 कोऑर्डिनेट्स विल बी x14 y14. ठीक है, तो x की सीरीज का कॉमन डिफरेंस यहां से मिल जाएगा, y की सीरीज का भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. एंड क्वेश्चन आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाइंग द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव होगा और y का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा. तो फ्रॉम x2 टू x14, x2 है 85, x14 है 79,
देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 12 टर्म्स, यानी कि x2 प्लस 12d, दिस विल बी x14, और डिफरेंस कितना आ रहा है 85 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तब 79 आ रहा है, यानी कि x2 प्लस 12d इज 79, या 85 प्लस 12d इज 79, यानी 12d इज इक्वल टू -6। d1 कर देते हैं, तो x के लिए हमने कर दिया d1, ठीक है। सो d1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू -12, एंड d1 इज कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज ऑफ x। सिमिलरली -33 से लेके -15 तक, इन दिस केस डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से करना है इसको, y2 प्लस 12d2, दिस इज इक्वल टू y14, यानी कि -33 प्लस 12d2 इज इक्वल टू -15, तो यहां से 12d2 की वैल्यू आ जाएगा -15 प्लस 33, यानी कि दिस विल बी प्लस 18, तो d2 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। d2 आ गया इक्वल टू 3/2, क्या ये क्लियर है? d1 इज -12, d2 इज इक्वल टू 3/2, एंड क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या चाहिए, क्वाड्रेंट नंबर 1, सो x कोऑर्डिनेट शुड आल्सो बी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट शुड आल्सो बी पॉजिटिव। अब ध्यान ये देना है, देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो दैट पॉइंट इज नॉट इन x फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x इक्वल टू 0 है तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड इफ y इज इक्वल टू 0, देन पॉइंट इज ऑन x एक्सिस एंड नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इवन इफ अगर उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तब भी द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस एंड नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के लिए बोथ कोऑर्डिनेट शुड बी पॉजिटिव, बोथ द कोऑर्डिनेट शुड बी पॉजिटिव, दैट इज अ मस्ट कंडीशन। ओके, सो A2 85 है, A14 79 है, लगातार डिक्रीज कर रही है वैल्यू, तो देखते हैं कौन से टर्म पे जाके हमारा xn की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, xn का वैल्यू कब जाके 0 हो जाएगा। तो A2 प्लस लेटर से n1 टर्म्स के बाद में हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो n1 d1 लेटर से दैट इज इक्वल टू 0, तो A2 इज इक्वल टू 85, तो 85 प्लस n1 इंटू d1 कितना है -12, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा कि $85 is equal to n1/2, and hence n1 comes out to be equal to 170, यानी कि आफ्टर 170 टर्म्स, बट कहां से, ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं कर रहे हम, A2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो A2 प्लस 170 मोर टर्म्स, यानी कि दिस विल बी बेसिकली सेइंग दैट A172 दिस विल बी इक्वल टू 0। एक सेकंड, A2 नहीं लिखना चाहिए था, x2 लिखना चाहिए था, भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है। x172 0 होगा, A2 नहीं, A2 तो पॉइंट है विद x एंड y कोऑर्डिनेट्स, तो x2 प्लस n1 d1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि x172 0 हो जाएगा, x172 0 हो जाएगा, और उसके बाद वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रहा है, यानी कि लास्ट टर्म कौन सा है, x171 विच इज हैविंग अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारे जो कंसर्न के पॉइंट्स हैं दैट आर टिल x171। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो x1 x2 टिल x171 इन सब का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल x171, बिकॉज x172 पे दिस वैल्यू 0। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट प्रोसेस करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है स्टार्ट से ही, हमें देखना है 0 कब हो रहा है, तो फिर उसके बाद की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, तो y2 -33 है, तो y2 प्लस n2 d2, d2 इज कॉमन डिफरेंस फॉर y सीरीज इक्वल टू 0, और y2 आ रहा है -33 और d2 है 3/2, तो -33 प्लस n2 इंटू 3/2 दिस इज इक्वल टू 0, तो 3n2/2 इज इक्वल टू 33, n2 इज इक्वल टू 22 आ गया, ठीक है। तो सेकेंड टर्म में 22 टर्म्स ऐड करोगे तो कौन सा टर्म बनेगा हमारा, दैट वुड बी y24, सो y24 इज इक्वल टू 0, और इसके बाद के टर्म्स पॉजिटिव होंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि पॉजिटिव आएगा y में दैट विल बी y25, y25 इज ग्रेटर देन 0, तो y25 y26 y27 एंड सो ऑन, ऑल दीज विल बी पॉजिटिव टिल y इंफिनिटी, सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव होंगे,
बट हमारा कंसर्न है बोथ शुड बी पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, यानी कि हमारे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कब होंगे? x25 x26, ठीक है, बिकॉज एक्स के तो सारे के सारे x1 से पॉजिटिव है, कहाँ तक? 171 तक। तो x25 x26 x27 टिल x171 ये सारे पॉजिटिव होंगे, बिकॉज y भी कंसर्न है हमारा, ठीक है। तो x25 y25 दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x26 y26 दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सो ऑन। लास्ट होगा हमारा y171, बिकॉज y तो इसका पॉजिटिव रहेगा हमारा, बट x 0 हो जाएगा, x172 दिस विल बी इक्वल टू 0। सो दिस विल बी लास्ट पॉइंट, ठीक है, विच विल बी A171, और दिस विल बी फर्स्ट पॉइंट A25 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज इससे पहले y24 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो A25 से लेके A171 तक नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? फ्रॉम A25 टू A171 दीज विल बी पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 171 माइनस 25 प्लस 1 दीज विल बी नंबर ऑफ पॉइंट्स विच विल बी 172 माइनस 25 147 पॉइंट्स इन टोटल। This will be the answer, option B. 147 points in total will be in the first quadrant. Is this part clear? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B are attending an event. Some members are males and some are females. A says if I am not included, number of men is 4 times the number of women. B says if I am not included, number of men is 5 times the number of women. How many members are in the party? Some members are male and some are females. A is saying if I am not included, number of men is 4 times the number of women. तो इफ ए इज नॉट इंक्लूडेड, सो ए को रिमूव करने के बाद में मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ रहा है? मैन नंबर ऑफ मैन इज 4 टाइम्स, यानी कि 4:1 का रेशियो आ रहा है। एक पर्सन को रिमूव किया है, रेशियो आ रहा है 4:1। बी इज सेइंग दैट इफ ही इज नॉट रिमूव, इफ बी इज नॉट इंक्लूडेड, बी ही है शी है पता नहीं, तो इफ बी इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट केस रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इज 5:1। ठीक है, सो फर्स्ट केस में 4 + 1 यानी कि नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन का सम दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5। एक ही पर्सन को रिमूव किया है हमने। सेकंड केस में दिस इज द मल्टीपल ऑफ 6। इन बोथ केसेस वी हैव ओनली रिमूव्ड 1 पर्सन, तो टोटल नंबर तो सेम आना चाहिए, 5 और 6 पर नहीं आना चाहिए, तो इक्वल कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाई 6 इन द फर्स्ट केस एंड बाई 5 इन द सेकंड केस, बाई 6 इन द फर्स्ट केस बाई 5 इन द सेकंड केस। तो क्या अल्टीमेटली रेशियो का वैल्यू आ गया हमारा? फर्स्ट केस में वैल्यू आ जाएगा 4 × 6 24 6 फॉर मैन एंड वुमेन। सेकंड केस में वैल्यू आ जाएगा 5 × 5 25 5 24 6 25 5। क्या ये क्लियर है? ऑल्सो इफ ए एंड बी बोथ वर ऑफ द सेम जेंडर, इफ बोथ वर मेल्स, अगर ए और बी दोनों ही हमारे मेल्स होते, दोनों सेम जेंडर के होते, इन दैट केस वेदर यू आर रिमूविंग ए और बी, तो हमारा रेशियो तो मैन और वुमेन का सेम ही रहता। इफ बोथ वर मेल्स इन दैट केस रेशियो तो दोनों केसेस में सेम रहता। अगर 4:1 पहले केस में था तो सेकंड केस में भी 4:1 ही होता इफ बोथ वर मेल्स। ऑल्सो इन केस इफ बोथ वर फीमेल्स, तब भी रेशियो सेम ही रहता, क्योंकि पहले केस में अगर ए को इंक्लूड कर रहे हो तो भी नंबर ऑफ फीमेल्स जितनी बचने वाली है, सेकंड केस में भी उतनी बचेंगे अगर दोनों सेम जेंडर के हैं तो। बट the ratio of men and women is not same in both cases. That implies that A and B are not of the same gender. They are not of the same gender. उनका gender different है. If A is male, B will be female. If A is female, B will be male. Is that clear? कि यहां से हम ये conclude कर सकते हैं for sure that A and B are of different gender. क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज अगर सेम जेंडर के होते तो पहले और दूसरे केस में रेशियो एग्जैक्टली सेम आता। ठीक है, ऐसे समझो, लेट अस से अगर हमारे पास नंबर ऑफ मैन होते 36 और नंबर ऑफ वुमेन होते 14, और तुमने एक मैन को रिमूव किया, अब वो मैन ए है बी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुमने एक मैन को रिमूव किया लेट अस से, तो 35 मैन बचे, 14 वुमेन बची, रेशियो क्या गया हमारा 5:2। अब वो एक मैन ए होगा तो भी रेशियो 5:2 होगा, एक मैन बी होगा तब भी रेशियो 5:2 होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए हो बी हो सी हो डी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दैट इज अ मैन, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तुम्हारा सेम ही रहने वाला है।
ठीक है, रेशियो कब चेंज होगा? जब पहली बार तुमने मैन को रिमूव किया, दूसरे केस में वुमन को रिमूव किया, तो रेशियो हो जाएगा दूसरे केस में 36:30. दीज टू रेशियोज आर डिफरेंट. तो वही लॉजिक यहाँ पे कह रहे हैं कि ए एंड बी मस्ट बी ऑफ द डिफरेंट जेंडर. डिफरेंट जेंडर के होंगे बिकॉज इन बोथ केसेस रेशियो हमारा डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि फर्स्ट केस में व्हेन वी आर एक्सक्लूडिंग ए, व्हेन ए इज नॉट इंक्लूडेड, नंबर ऑफ मेन इज 4 times द नंबर ऑफ वुमेन. बट व्हेन वी आर नॉट इंक्लूडिंग बी, जब बी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मेन इज 5 times द नंबर ऑफ वुमेन. यानी कि सेकंड केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वुमेन और भी डिक्रीज कर रहा है. हमने दोनों केसेस में एक ही पर्सन को रिमूव किया है, बट इन सेकंड केस इन टर्म्स ऑफ रेशियो, क्योंकि टोटल तो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, ओनली वन पर्सन हैज बीन रिमूव्ड, बट इन टर्म्स ऑफ रेशियो नंबर ऑफ वुमेन हैज डिक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियो, बिकॉज men or women का ratio is 5:1. So men are now 5 times of women. So that also implies that since in the second case it is hampering the value of women, the ratio of women, ठीक है, more in comparison to men, ठीक है, so that says that B must be a woman, B must be a female. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिकॉज अगर B मेल होता, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट केस होगा, सेकंड ए और बी का जेंडर तो डिफरेंट है. ठीक है, तो पहले केस में हमारा रेशियो आ रहा है मैन वुमेन का 4:1, सेकंड केस में आ रहा है 5:1. ठीक है, तो अगर ए हमारा फीमेल होता और बी मेल होता, ठीक है, तो पहले वाले केस में जब हम फीमेल को रिमूव कर रहे हैं रेशियो आ रहा है 4:1, और सेकंड केस में जब मेल को रिमूव करोगे तब रेशियो हमारा इंस्टेड 5:1 आ रहा है. यानी कि मेन का इन कंपेरिजन टू वुमेन रेशियो ज्यादा हाइयर आ रहा है, 5:1 आ रहा है. सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फर्स्ट पर्सन यानी ए इज अ मेल एंड बी इज अ फीमेल. ठीक है, क्या ये क्लियर है? और वो रेशियो से भी देख रहा है 24:6 आ रहा है इन टोटल, जो हमने सेम वैल्यू ले लिया विच इज टोटल इज 30. सेकंड केस में भी 30 आ रहा है. ठीक है, फर्स्ट केस में तुम यहाँ पे मेल ऐड कर दो 1, 25 हो जाएगा. सेकंड केस में फीमेल ऐड कर दो 6 हो जाएगा. यानी कि ओवरऑल अगर किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करोगे तो रेशियो आएगा 25:6 का. बेसिकली 25 विल बी मेन एंड 6 विल बी women. 25 plus 6 total number will be 31. Total number will be 31. Answer will be none of these, and data is completely sufficient. 31 members will be there. Is that clear? और 31 इसलिए होगा, देखो यहाँ पे एक दिमाग में बात ये भी आ सकती है कि 25/6 हो रहा है, 30 कर दिया, 30 की बजाय 60 भी तो कर सकते हो. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम 60 कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें लेट अस से 2 से, so this value will be 48:12 for first ratio. second के लिए वैल्यू आ जाएगा 50:10. बट इन द फर्स्ट केस ए इज एक्सक्लूडेड, एक पर्सन को एक्सक्लूड किया था हमने ए, और सेकंड केस में बी वाज एक्सक्लूडेड. तो अब बी, ए और बी को, पहले वाले केस में ए को ऐड कर दो, दूसरे में बी को ऐड कर दो. पहले वाले केस में ए क्या था, ए वाज अ मैन, +1 कर दो. सेकंड में बी को इंक्लूड कर दो +1. तो पहले वाले केस में नंबर क्या आ जाएगा हमारा 49 और 12, 49 मेन 12 वुमेन, और सेकंड केस में वैल्यू आ जाएगा 50:11. सेम कहाँ आ रहा है, मतलब कि सम तो सेम आ रहा है हमारा. सम विल बी 61, एक सेकंड 50 है, सम विल बी 61 इन बोथ केसेस, बट मेन और वुमेन सेम तो होना चाहिए ना, वो तो नहीं हो रहा है. और क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. ठीक है, और एक ही पर्सन है. अगर नंबर ऑफ पर्संस भी गिवन नहीं होता तो फिर बात अलग थी, फिर तो अनडिफाइंड होता, डेटा इनसफिशिएंट होता. बट अदरवाइज हमें पता है कि ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है. ओनली वन केस इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ पर्संस इज 31 एंड 1 इज एक्सक्लूडेड, और वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो आंसर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 31. नन ऑफ दीज विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, अदरवाइज कैसे कर सकते थे? सेकंड केस वुड बी मेथड 2 कि इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, देखो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो 2 केसेस ले सकते हो. केस 1 ले लोगे तुम, when A is a man and B is a woman, डिफरेंट जेंडर तो हमने समझ ही लिया. सेकंड केस ले लोगे कि A will be woman and B will be man, बट फिर टाइम ज्यादा खराब करोगे. 2 इक्वेशन बनाओगे, एक केस में इक्वेशन ऐसा आएगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव में वैल्यूज आ जाएंगी या वैल्यूज इनकंसिस्टेंट नहीं होगा. ठीक है, सो बेसिकली अल्टीमेटली हमें क्या वैल्यू मिलेगा, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, व्हेन A is a man and B is a woman. तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनाते हैं. फर्स्ट केस में A is saying if I am not included, number of men is 4 times the number of women.
So if A is not included, the number of men is 4 times the women. So basically in total क्या होगा, when A is not included and A is a man, ठीक है, so if A is not included, number of men is equal to 4 times of women. So in actuality, since है कि नहीं, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वुमन, है कि नहीं? और सेकंड केस में क्या हो रहा है, व्हेन बी इज नॉट इंक्लूडेड तो नंबर ऑफ मैन क्या हो जा रहा है, 5 टाइम्स ऑफ वुमेन हो जा रहा है. इन सेकंड केस नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वुमेन, बट वुमेन कितनी बच रही है, W-1. तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ W-1. Isn't it so? क्या ही क्लियर है? ठीक है. और फर्स्ट केस में जब हमने मैन को इंक्लूड नहीं किया एक पर्सन को, तो नंबर ऑफ मैन कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ वुमेन, यानी कि एक्चुअल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ मैन के एक्चुअल में क्या होगा, 4W+1, बिकॉज ए को भी तो इंक्लूड करोगे और ए भी एक मैन है, तो एक्चुअल नंबर शुड बी 4W+1. अब दोनों को इक्वेट कर दो, बोथ शुड बी इक्वल. तो 4W+1 दिस शुड बी इक्वल टू 5 इंटू W-1. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 4W+1 दैट इज इक्वल टू 5W-5. सो W विल बी इक्वल टू 6. Number of women in the party will be equal to 6. Number of men will be equal to 4 into 6 plus 1, 25. Total number will be 31. ठीक है, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन. तो कंफ्यूज हो रहे हो तो नेचुरल है. ठीक है, अगर समझ पाओगे, थोड़ा सा टाइम दोगे इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम. और अगर ये क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को. ये पार्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट जेंडर. ओके, एंड फिर क्यों ये केस ही सेटिस्फाई करेगा सिर्फ अकेले, विदाउट इक्वेशन. अगर करोगे रेशियो से कर सकते हो, अदरवाइज इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द टीम एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट. Odds that team arrogant will be champion is 5-3, and odds that team overconfident will be champion is 1-4. So what are the odds that either arrogant or team overconfident will become the champion? तो या तो arrogant team चैंपियन बन जाए या फिर overconfident team चैंपियन बन जाए. इनका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोनों केसेस का मिला के, दैट इज द क्वेश्चन. सबसे पहले तो ऑड्स में दिया है क्वेश्चन में कि ऑड्स दैट टीम एरोगेंट विल बी चैंपियन इज 5-3. सो व्हेनेवर द ऑड्स आर गिवन, ठीक है, सो ऑड्स इन फेवर गिवन है तो 5-3 दिया है जैसे. तो 5 आर ऑड्स इन फेवर, 3 आर ऑड्स इन अगेंस्ट. दैट मीन्स टोटल ऑड्स कितने हुए, टोटल कितना हुआ 5 + 3 8. सो प्रोबेबिलिटी के केस में कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम एरोगेंट विनिंग और बिकमिंग चैंपियन विल बी 5 विच इज इन फेवर डिवाइड बाय 5 + 3, तो 5/8 हो जाएगा. And probability for similarly for team overconfident for winning, इनके odds क्या है 1-4, यानी कि for their winning 1/1 + 4, because 1 is in favor and 4 in against, तो 1/5. So odds that either wins, probability of arrogant or overconfident winning, that will be 5/8 plus 1/5, because champion तो कोई एक टीम ही बनेगी. ठीक है, एरोगेंट बना तो 5/8, तो या तो एरोगेंट बनेगा चैंपियन या फिर ओवर कॉन्फिडेंट बनेगा, तो 5/8 + 1/5 एलसीएम ले लोगे, 25 + 8/40 यानी कि 33/40. दिस विल बी प्रोबेबिलिटी. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है ऑड्स क्या होंगे. अगेन फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फेवर में कितने हैं, फेवर में 33, टोटल कितना है 40. आउट ऑफ 40 33 इज इन फेवर, 7 विल बी इन अगेंस्ट. Odds will be 33-7. Odds that either arrogant of team or team overconfident will be champion, that will be 33-7. 33 in favor and 7 against. Option E will be the answer. Clear है? ठीक है, option E will be the answer in this case. सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी डिस्कस किया समझ में आएगा. किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट लाइक बटन एज वेल. यू कैन ऑल्सो कमेंट और मैसेज मी
on Telegram at ADITYAKT. That is all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.